हेलो माय डियर फ्रेंड्स। टीजीटी पीजीटी के इस सेशन में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम आप लोगों के लिए फिगर्स ऑफ स्पीच इसके हम 50 क्वेश्चंस लेकर के आए हैं। ठीक है, तो सबसे पहला है अ फिगर ऑफ स्पीच इज़, क्या है? अ रिटोरिकल फिगर। क्या है ना, इसका डी है सही, अ रिटोरिकल फिगर। अगला है अ फिगर ऑफ स्पीच इज अ फिगर ऑफ स्पीच इज एन इंटेंशनल deviation फ्रॉम ऑर्डिनरी लैंग्वेज फॉर द सेक ऑफ रिटोरिकल इफेक्ट। ठीक है, इसका नंबर डी ये सही है। नेक्स्ट है ट्रेडिशनली फिगर्स ऑफ स्पीच आर क्लासिफाइड इनटू, इसका जो नंबर सी ये करेक्ट है। सी नंबर देखिए क्या है इसका। सी नंबर है स्कीम्स एंड ट्रॉप्स। स्कीम्स एंड ट्रॉप्स। नेक्स्ट है फिगर्स ऑफ स्पीच इज समटाइम्स कॉल्ड। फिगर्स ऑफ स्पीच इज समटाइम्स कॉल्ड, क्या कहते हैं इसको? रिटोरिक। क्या कहते हैं इसको? रिटोरिक कहते हैं। एलिट्रेशन में बी डिफाइंड एज, एलिट्रेशन में बी डिफाइंड एज a repetition of a speech sound in sequence of words. A repetition of speech sound in sequence of words. नेक्स्ट नंबर देखिए, 6 नंबर। ओ बट आई फियर द फिकल फ्रीक्स इज एन इंस्टेंस ऑफ, कौन सा नंबर सही है? सी नंबर से एलिट्रेशन। ओ बट आई फियर द फिकल फ्रीक्स इज एन इंस्टेंस ऑफ एलिट्रेशन। एलिट्रेशन मीन्स अनुप्रास अलंकार। फुल फैदम फाइव दाई फादर लाइज इज एन एग्जाम्पल ऑफ एलिट्रेशन। What terms is what term is used when repetition of the same word of words at the start of two or more lines? Anaphora, इसका ए नंबर सही है, एनाफोरा। The term used for repetition of a word or phrase as the beginning of successive class is, ए नंबर इसका सही है, एनाफोरा। नेक्स्ट नंबर है द फिगर ऑफ स्पीच characterized by repetition of words or a group of words at the beginning of consecutive sentences is called anaphora. Next है the opposite of anaphora is एपिस्ट्रॉफी, एपिस्ट्रॉफी। नेक्स्ट नंबर है आ ल्यूडिक्रस डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ द सीरीज ऑफ आइडिया इज द डिस्क्रिप्शन ऑफ एंटी क्लाइमैक्स। द नेक्स्ट है द अदर नेम ऑफ एंटी क्लाइमैक्स इज पैथोज, इसका ए नंबर सही है, बैथोज। नेक्स्ट नंबर देखिए 14 नंबर। द सोल्जर फाइट्स फॉर ग्लोरी एंड शिलिंग अ डे। हेयर द फिगर ऑफ स्पीच इज एंटी क्लाइमैक्स। कौन सा? एंटी क्लाइमैक्स। द सोल्जर फाइट्स फॉर ग्लोरी एंड शिलिंग अ डे। हेयर द फिगर इज एंटी क्लाइमैक्स। नेक्स्ट देखिए 15 नंबर। फेयर इज माई लव। देखिए फेयर इज माई लव एंड क्रूल एज शी इज फेयर। हर ब्रो शेड्स फ्राउन ऑल दो हर आईज आर शनी। हर स्माइल्स आर lightning दो हर प्राइड डिस्पेयर। दीज लाइन्स शो द फिगर, इसमें कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है? तो इसमें है एंटीथेसिस। Man proposes, God disposes. The figure of speech is antithesis. Next है 17 नंबर। A man's nature runs either to herbs or weeds. Therefore, let him seasonably water the one and destroy the other. The figure of speech is antithesis. Give everyone thy ear, but few thy voice. The figure of speech is antithesis.
To err is human, to forgive divine. The figure of speech is antithesis. Which figure of speech has been used in the following line? Even thus, last night and 2 nights more I lay and could win thee, sleep by any stealth. C number is इसका apostrophe. Which figure of speech has been used in the following line? O world, O life, O time. Apostrophe. 22 नंबर देखिए. There rolls the sea, where grows the tree. O earth, what changes hast thou seen? The figure of speech used in these lines is apostrophe. 23 देखिए. Hail smiling morn, hail smiling morn. The figure of speech used here is, तो इसमें देखिए ए नंबर apostrophe. Exult O shores and ring O bells. Here the figure is apostrophe. Dear, come near and fear not is an example of assonance. Next है the repetition of similar vowels in the shrift syllabus of successive words is, तो इसका है assonance. In which figure vowel sounds are repeated? In which figure vowel sounds are repeated? तो इसमें किसमें है assonance. The other name of anticlimax is bathos. 29 देखिए. A sudden and ridiculous descent from the exalted to the commonplace and ordinary, especially when a writer striving for the noble and pathetic achieves the ludicrous. This is the best description of the term. This term is bathos. It is a grammatical term which refers to the inversion of word order from one clause to another. It is chiasmus. नेक्स्ट नंबर देखिए 31. One should eat to live, not live to eat, and ask not what your country can do for you, ask what you can do for your country are the example of chiasmus. नेक्स्ट है this rhetorical figure is derived from the Greek term for the letter X or for the crossover. It is a literary figure in which words, grammatical constructions or concepts are repeated in reverse order. It is chiasmus. नेक्स्ट है कंसीडर द स्टेटमेंट्स. स्टेटमेंट को कंसीडर करना है. सबसे पहला नंबर है एंटीमेटाबोल इज फिगर विच मेक्स द रेपिटिशन ऑफ वर्ड्स और फ्रेजेस. अगला देखिए. नेक्स्ट नंबर है chiasmus is a figure which makes the repetition of similar concepts. It repeats similar concept within a repeated grammatical structure, but it is not essential that it will involve the repetition of the same words. Number 3 देखिए. The two figures in though seem to be the same differ. Antimetabole reverses the exact words. Chiasmus also reverses, but it is reverses the grammatical structure. It is not essential that it will reverse with the same words. तो ये सारे सही हैं, करेक्ट हैं. All are correct. The circumlocution is also known as periphrasis. नेक्स्ट देखिए. द क्लाइमैक्स इज ग्रीक वर्ड विच सिग्निफाइज. क्लाइमैक्स इज अ ग्रीक वर्ड विच सिग्निफाइज तो अ लेडर. नेक्स्ट है क्लाइमैक्स इज द सीरीज ऑफ आइडिया इन द, तो इसका ए है ए नंबर असेंडिंग
ascending order of importance. Climax is the series of idea in the ascending order of importance. 37 नंबर में देखिए, to gossip is fault, to libel a crime, to surrender a sin. The figure is climax. The best way to learn a language is to speak it. Here the figure is, तो ए नंबर इसका सही है, क्लाइमेक्स. टर्निंग पॉइंट इज 39 देखिए, टर्निंग पॉइंट इज क्लाइमेक्स. 40 नंबर देखिए, इट इज एन इनऑफेंसिव और इनडायरेक्ट एक्सप्रेशन. इट इज सब्सटीट्यूटेड फॉर वन दैट इज कंसिडर्ड ऑफेंसिव और टू हार्श. For instance, someone is no more. It is known as euphemism. Euphemism. और नेक्स्ट देखिए 41. Zounds. Zounds is an euphemism for. Zounds is an euphemism for. 41 का देखिए उसके आगे, तो डी नंबर इसका सही है, गॉड्स वाउंड्स. 42 देखिए, स्पीच इज सिल्वर बट साइलेंस इज गोल्ड. द फिगर ऑफ स्पीच इज एपिग्राम. नेक्स्ट नंबर 43 में, इट इज अ वाइज फादर दैट नोन हिज ओन चाइल्ड. द फिगर इज एपिग्राम. इट इज अ वाइज फादर दैट नोन हिज ओन चाइल्ड. द फिगर इज, तो इसका क्या है, एपिग्राम है. नेक्स्ट नंबर देखिए 44 का, ही वॉज अ लर्नेड मैन अमंग लॉर्ड्स एंड लॉर्ड अमंग लर्नेड मैन. ही इज अ लर्नेड मैन अमंग लॉर्ड्स एंड अ लॉर्ड अमंग लर्नेड मैन. द फिगर इज एपिग्राम. 45 देखिए, एपिग्राम इज, ए नंबर सही इसका, अ ब्रीफ सेइंग दैट एंड्स इज विटी टर्न ऑफ थॉट्स. 46 देखिए, एपिग्राम इज अ शॉर्ट विटी स्टेटमेंट इन वर्स और प्रोज. इट मे बी कॉम्प्लीमेंट्री, सैटारिक और एफोरिस्टिक. इट इज डिफाइंड एज अ ड्वार्फिश होल. इट इज इट्स बॉडी ब्रेविटी एंड विट इट्स सोल. हु डिफाइंड एपिग्राम इन दिस मैनर. तो इसका डी नंबर सही है, कॉलेरिज. What is the figure of speech in which a statement is made emphatic for overstatement? तो इसका ए नंबर सही है, हाइपरबोल. 48 देखिए, द लाइन दे वर स्विफ्टर दैन ईगल्स एंड स्ट्रॉन्गर दैन लायंस कंटेन्स अ फिगर ऑफ स्पीच. इट इज, सी नंबर सही, हाइपरबोल. 49, 10,000 saw I at a glance. The figure is hyperbole. 50 number, meiosis, which is understatement for rhetorical effect, is the opposite of hyperbole. ठीक है, तो ये 15 क्वेश्चन हैं. ये सारे 50 क्वेश्चन हमने आज कराए. इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम 50 क्वेश्चन फिर इसकी सीरीज लेकर के आएंगे. तब तक धन्यवाद, देखते रहिए इसको और हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए. थैंक यू.